Assalamu alaikum. I am Maria Fayyaz. First of all, I will give my introduction. I am a lecturer, an entrepreneur, and a content writer, also an article writer and a blog writer. So, first thing, the course is about developing your research project or proposal. Now, what can you do for it? सबसे पहले you have to develop your skill. Developing का मतलब कितना बड़ा जरूरी है. That is, developing का मतलब होता है develop your skill, develop your creativity, develop your decision making, develop your time management. This all related to your research. जितनी अच्छी रिसर्च होगी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतनी अच्छी डेवलपमेंट होगी फॉर यू. Right? Now we will go further. Now this is the lecture number 1. We will go through 5 weeks. 5 weeks will be covered up with 22 lectures. Right? सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए how you can develop your research. The most important subject. क्योंकि अगर आप कोई भी चीज शुरू करते हैं, कोई भी कोर्स शुरू करते हैं, तो उसके लिए जरूरी होता है कि आपको पता हो कि व्हाट दैट द होल मीनिंग, कोर मीनिंग क्या है, माइंड मैप क्या है. माइंड मैप क्या होता है, राइट? माइंड मैप जैसे कि आप ये पीछे पिक्चर देख रहे हैं, एक फोकस पॉइंट है, उसके कहीं ज्यादा हिस्से हैं. जैसे कि आप रिसर्च करना चाहते हैं, आपको एक रिसर्चर है आपका या आपको एक सुपरवाइजर है, दे गिव यू अ टास्क ऑफ develop a research about marketing, about advertisement mainly. जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मार्केटिंग क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, तो हाउ कैन यू गो टू इट, राइट? अब आपको देखें, आप जो भी दुनिया में काम करना चाहते हैं, आप कोई जॉब करना चाहते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं, रिसर्च इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. आजकल लॉकडाउन है, फायदा उठाएं इसका. हाउ फायदा आप ऐसे उठा सकते हैं कि आप यू कैन यूटिलाइज योर मोर टाइम इन रिसर्चिंग. What is your main skill? What is your focus? Is how to work on your skills, how to work on yourself. अगर आप खुद को बेहतर करते हैं तो आपके बहुत सारे काम बेहतर हो जाते हैं, राइट? माइंड मैप की तरफ आते हैं. And this is your focus point, is your research project. This is what is this focus area, books and articles, specific जो journal होते हैं आपके, journals, research topics. Now where to start? Where to start is the most important question in your life. जब भी आप कोई ऐसे लिखना शुरू करते हैं तो आप कहते हैं कहाँ से स्टार्ट करें. I know the whole idea but I don't know where to start. तो इस होल कोर्स में कुछ प्रेजेंटेशंस हैं, बहुत सारी प्रेजेंटेशन है. हर कोर्स के साथ एक प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी जो आपको समझने के लिए, मतलब it will develop your understanding about the course. अगर आप कोर्स के साथ रहेंगे, हर एक लेक्चर को अटेंड करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपने कोर्स को लेकर चलना है. हर एक स्टेप पर आपको बताया जाएगा हाउ टू डेवलप योर रिसर्च, हाउ टू डेवलप योर स्किल, व्हाट इज योर इंस्पिरेशन, व्हाट विल बी हेल्प यू इन फर्दर थिंग्स, राइट? सो गोइंग टुवर्ड्स योर presentation. So this is your presentation, right? Developing your research project, research or proposal. Sorry for the slide. Okay. Now week 1, lecture number 1 है academic research and proposal. Lecture number 2 आपको where to start. It is very important to understand where to start. Understanding आपकी कैसे बढ़ सकती है, focus point क्या होने चाहिए, how you can narrow down your idea. Lecture number 3, introduction to academic research. Lecture number 4, what is interpersonal skill and how you can develop it. Lecture number 5, what exactly you are getting into, vital checklist and weekend tasks. Week 2, frame your research proposal, how to do your topic. कुछ लोग होते हैं जैसे कि आप, if you are in a political science, if you are a lawyer, if you are a marketer, if you are a supply chain manager, so you have to know how to choose your topic. अगर आपको टॉपिक दे दिया जाता है तो आपने उसकी स्पेसिफाइड चेन ढूंढनी है कि ओके, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, यू हैव टू नंबराइज इट. आपको पता होना चाहिए. अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंड मैप. प्लान होना चाहिए चीजों का. प्लान तभी हो सकता है जब यू हैव अ सेटल समथिंग इन योर माइंड. आपका माइंड क्लियर हो अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. Actually, okay,
leading towards a research question and developing your hypothesis. The most important, leading towards, हो सकता है it would be your question, it would be your hypothesis. क्या होता है hypothesis ये बताएंगे. रिसर्च क्वेश्चन किसे कहते हैं, कैसे डेवलप करते हैं. हर थीसिस में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट होता है, वो होता है आपका क्वेश्चन. क्वेश्चन नहीं होगा तो आप आंसर कैसे ढूंढेंगे. सो लीडिंग टुवर्ड्स. लेक्चर नंबर 8, ड्राफ्टिंग योर इनिशियल प्रपोजल. इफ यू आर अ एमफिल स्टूडेंट, यू आर राइटिंग अबाउट योर प्रपोजल, तो आपको फर्स्ट प्रपोजल लिखना होता है, फिर सेकंड प्रपोजल, फिर उसको सबमिशन एंड ऑल दैट, राइट. इसके बाद है टिप्स टुवर्ड्स लर्निंग. जस्ट वेट. टिप्स टुवर्ड्स लर्निंग. उसके बाद है हाउ यू कैन यूज डिफरेंट साइट्स फॉर लर्निंग. Writing hypothesis, weekend task and argument. Next step, week number 13. Now, drafting first draft proposal. Structure your research proposal. आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपका ड्राफ्ट बनना है. फर्स्ट उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए ये बताया जाएगा. एकेडमिक राइटिंग टिप, ग्रामर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट. स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ग्रामर, पैराग्राफ, टेंस, कितने वर्ड्स की आपकी रिसर्च होनी चाहिए. फर्स्ट प्रपोजल कितने वर्ड्स होने चाहिए, दिस मस्ट बी नोन. एनालाइजिंग योर रिसर्च प्रपोजल. टिप्स हैं क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड राइटिंग. आपने अपने ही प्रपोजल को जब जहां तक लिखा है उसको आपने क्रिटिकली सोचना है. अच्छा क्या कमी है इसमें. इट्स आई एम गिविंग इनफ आर्गुमेंट टू जस्टिफाई माई पॉइंट. राइटिंग क्या आपने जो राइटिंग स्ट्रक्चर है इट्स गुड और बैड, राइट, इसको देखना है आपने. Lecture number 15, writing, understanding research methodologies. Primary research क्या होती है, secondary research क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, and many things more. Lecture number 16, leading towards a second draft. Breaking your research terms, systematically checking your sources, record your findings. इसके बारे में ये थोड़ा आप जब जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि रिसर्च के सिस्टमैटिकली थिंकिंग चेकिंग कैसे करनी है उसको. फिर है ड्राफ्टिंग योर, सेलेक्टिंग योर मेथोडोलॉजी. अगर आप प्राइमरी कर रहे हो तो क्या मेथड होना चाहिए, सेकेंडरी कर रहे हो तो क्या मेथड होना चाहिए. हैंडलिंग एकेडमिक आर्गुमेंट, कोफिशिएंट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम. सॉल्विंग प्रॉब्लम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हैंडलिंग योर टाइम, सॉल्विंग प्रॉब्लम, आर्गुमेंट सॉल्विंग कैसे हैंडल करना है. अक्सर हम एक पॉइंट पे फोकस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइजमेंट, राइट. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओके एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन और सेल, इसमें क्या फर्क है. एंड तो वही है ना. लेक्चर नंबर 20, सबमिट योर न्यू प्रपोजल. आपने प्रपोजल सबमिट करना है. एवरी रिमेंबर दैट हर आपके लेक्चर के बाद एक टास्क है. दिस वुड बी इंटरैक्टिव लेक्चर. ये इंटरेस्टिंग तभी हो सकता है जब ये इंटरैक्टिव हो. आप अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्या चीज समझ आ रही है, आप किस तरफ जा रहे हैं. दिस वुड बी मस्ट यू, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करने में ये हेल्प करेगा, राइट. सबमिट योर न्यू प्रपोजल. रेफरेंसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. रेफरेंसिंग, जैसे हम अक्सर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स लिख लेते हैं लेकिन रेफरेंसिंग किसी और से करवाते हैं. तो ये भी हम देखेंगे कि रेफरेंसिंग कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कहाँ कहाँ रेफरेंसिंग होती है. ओके, नाउ लेक्चर नंबर 21, हम आखिर की तरफ जा रहे हैं. अब ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर करना है, फिर समरी कैसे बनाते हैं. लेक्चर नंबर 22 में द लास्ट, प्रेजेंटेशन. अगर आपको अपना लेक्चर प्रेजेंट करना ही नहीं आता, यू कांट गो थ्रू इट. कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है, आगे बढ़ना है और इसको रिसर्च प्रपोजल को कंप्लीट करना है, राइट. ओके, अब ये है आपका, हम आगे जा रहे हैं. व्हाट इज रिसर्च. रिसर्च क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट वी आर गोना इट हेल्प इट एंड वेयर टू स्टार्ट. रिसर्च क्या है आपको ये देखना बड़ा जरूरी है. हम ये सारा इस लेक्चर में देखेंगे. रिसर्च चाहती है कि किसी भी टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल से जानना. अब ये किस किस डेवलपमेंट मतलब हेल्प करता है, ये आपको हर जगह हेल्प करता है. मैंने भी पहले बता चुके वेयर टू स्टार्ट इट. अच्छा, ये एक आपको एक स्टोरी की तरह है रिसर्च, जिसके बहुत सारे पार्ट हैं और उसको आपने देखना है कि जो है कैसे हम इसको डेवलप करते हैं, राइट. हम इसको कैसे एंड तक लेके जाते हैं, उसके हिस्से जमा करके हम उसको बताएंगे कि ओके क्या होना चाहिए. अब डिफरेंट पीपल विद अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन. अब हर बंदे की थिंकिंग, अल्लाह ताला ने हर इंसान को नवाजा है मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशनल स्टाइल से, मुख्तलिफ थिंकिंग से,
मुख्तलिफ बॉडी सबके अलग है, जैसे कि हम कहते हैं सबके फिंगरप्रिंट्स तक अलग हैं, तो हाउ यू कैन थिंक कि आप डिफरेंट हो सकते हो किसी से ना, आप डिफरेंट हैं सबसे, तो आपकी थिंकिंग स्टाइल भी डिफरेंट है। अब आपने अपनी थिंकिंग स्टाइल को यूज करना है। नाउ एकेडमिक लेक्चर के बारे में आपको बता चुके हैं, फाइंडिंग योर इंस्पिरेशन, क्लियरली डेवलप योर आर्गुमेंट, वेयर टू फाइंड योर इंस्पिरेशन। अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है कि व्हाट इज योर इंस्पिरेशन, आप किससे इंस्पायर हैं अपनी लाइफ में, अपने पेरेंट्स से इंस्पायर हैं, अपने फ्रेंड्स से इंस्पायर हैं, किसी बड़ी पॉलिटिकल कोई आपके दरमियान माइंड में हो, ओके दिस इज द पर्सन आई रियली लाइक इट, दिस इज माय इंस्पिरेशन, राइट। जानना है अपने बारे में तो अपनी इंस्पिरेशन को जमा करें, अपने पैशन को सामने रखें। मीन इफ यू लव बिजनेस, ओके गो थ्रू इट, जॉब मत करें। इफ यू वांट टू जॉब इट, अगर आपको किसी के इंस्ट्रक्शन पे काम करना है, आपको अच्छा लगता है कि ओके कोई मुझे बता दे कि इस तरह काम करना है, इस मेथोडोलॉजी से काम करना है, फिर आप अपनी, कुछ लोग जॉब्स में अपनी स्किल डेवलप करते हैं, कुछ लोग जो है बिजनेस में अपनी स्किल डेवलप करते हैं, मगर ये तभी हो सकता है जब आपकी बहुत अच्छी रिसर्च हो about yourself. First of all, research about yourself, what you want from life, आपकी इंस्पिरेशन क्या है, आप क्या चाहते हैं लाइफ से, जो आप रिसर्च करें वो सब उसी से जुड़ा है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट है वो एक्चुअली इट्स योर चॉइस। अगर बाय डिफॉल्ट भी आपका चॉइस बन गया, मीन इफ योर इट इज योर फादर चॉइस और समवन हैज इंस्पायर्ड यू, तो आपने उस वक्त उसकी बात मान के पढ़ लिया वो, तो नाउ आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है, क्योंकि अगर आप बीच में चीजें छोड़ देते हैं तो इट कांट लीड टू योर सक्सेस। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इंस्पायर करती है। दिस इज एन ऑल रिसर्च अबाउट द प्रोजेक्ट। आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, आपको सुपरवाइजर ने आपको प्रोजेक्ट दे दिया है अबाउट एनीथिंग, यू कैन डिस्कस इट कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है, तो आपने उसको असेंबल करना है, नैरो डाउन करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं इंस्पिरेशन, मैंने आपको बताया कि अपने अंदर सोचें कि आप किस शख्स से ज्यादा इंस्पायर हैं, क्योंकि इंसान जिससे ज्यादा इंस्पायर होता है उसकी तरह उसकी आदतें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। जस्ट ट्रू, दैट्स रियली ट्रू। ओके, नाउ गोइंग टू फर्दर, व्हाट यू कैन डू टू डेवलप योर स्किल एंड क्रिएटिविटी, राइट। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, रिसर्च, हर चीज में रिसर्च है। स्किल एंड डेवलपमेंट, कुछ लोगों को बड़े अच्छे आइडियाज आते हैं, दे हैव अ वेरी गुड माइंड, बट वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज दे हैव अ लैक ऑफ आइडिया बिहाइंड। आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए होती है रिसर्च। मैं बार बार इस वर्ड का यूज कर रही हूँ बिकॉज दिस इज द मेन फोकस पॉइंट। अगर आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना ही नहीं आएगा दूसरों के सामने, हाउ कैन यू डेवलप योर आर्गुमेंट, राइट? दिस इज द मेन थिंग। अब क्रिएटिविटी आपकी अंदर होती है, यू हैव टू यूज इट टू डेवलप योर आर्गुमेंट, राइट? आंसर योर ओन क्वेश्चन। सबसे पहले अगर आप किसी से भी क्वेश्चन पूछते हैं तो यू हैव टू हैव एन आंसर। एकदम माइंड हमारा इस तरह क्लिक करता है कि अगर हम कुछ भी सोच रहे हैं हमारे पास आंसर होता है। व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च आई वांट टू डू, प्राइमरी होनी चाहिए, सेकेंडरी होनी चाहिए, किस टॉपिक पे होनी चाहिए। अक्सर सुपरवाइजर की हमें चॉइस देते हैं, लाइक इन माय MBA आई हैव अ चॉइस टू चूज माय टॉपिक, so I have chosen CSR, corporate social responsibility, because I was inspired by some industry having a good corporate social responsibility system, right? Where to start? The most important thing दोबारा आ रहा है, इस पर मत सोचना है कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सी इंडस्ट्री को फोकस करना है, कौन से पॉइंट को फोकस करना है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वेदर, किस तरह के समर विंटर, किस तरह पे बात करनी, किस पे बात करनी। देखें, हर चीज के बहुत सारे पहलू होते हैं। इफ यू टॉकिंग अबाउट योर वॉच, कौन सी वॉच? इफ यू टॉकिंग अबाउट द फोन, योर आईफोन है, सैमसंग है, कौन सा फोन के बारे में आप बात करें, तो यू हैव टू नो वेयर टू स्टार्ट। ऐसे हवा में आपको नहीं करना रिसर्च, आपको स्पेसिफाई होना चाहिए योर फोकस पॉइंट, नैरो डाउन योर फोकस पॉइंट। शुड आई प्लान और राइट? कुछ लोगों को आदत होती है कि वो पहले लिखना स्टार्ट कर देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिसर्च करते हैं, देन वो उस चीज को लेके चलते हैं। कुछ लोग पहले प्लान करते हैं, माइंड मैप दोनों में चलता है। ओके, आप सोच रहे हो एक पॉइंट है, मैं सोच रही हूँ आई हैव टू राइट अबाउट मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग में मैंने एडवर्टाइजमेंट की बात करनी है, राइट? एडवर्टाइजमेंट में मैंने किसकी बात करनी है? मैंने बात करनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट की बात करनी है। नाउ दिस इज समथिंग यू आर गोइंग थ्रू इट, फिर जाकर टॉपिक शुरू होता है।
First, you have to narrow down your focus, right? Are I getting in the right direction? The most important thing. अब आपने, for example, you have a topic of advertising, how you can put it into the sales. बड़ा different है ना, sales आपने इसको नहीं जोड़ना sales के साथ, उसका पार्ट जरूर होना चाहिए in some other way, but not अगर आप एडवर्टाइजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, वही सोचो, सेल 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 की तरफ मत सोचो, सेल इज नॉट योर पॉइंट, सेल कस्टमर कस्टमर कस्टमर, वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक बहुत बड़ी एक चीज है जिसको आपने नैरो डाउन करना सीखना है, एंड आई विल टीच यू हाउ यू नैरो डाउन योर टॉपिक. नाउ आई एम गैदरिंग द राइट मटेरियल. ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. समहाउ स्टूडेंट्स जो है इतना मटेरियल गैदर कर लेते हैं कि वो मेन चीज को भूल जाते हैं. तो आपने कैसे अपना फोकस डाउन करना है, एक आर्टिकल में आपने क्या पढ़ना है ये तक आपको मैं सिखाऊंगी, पूरा आर्टिकल कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो कैसे आपने चीजों को नैरो डाउन करना है, इट शुड बी मोर इम्पोर्टेंट थिंग. व्हाई आई लॉस्ट माय फोकस, द बेस्ट क्वेश्चन आई थिंक. और ये मैं डिस्कस करना चाह रही थी कि व्हाई आई लॉस्ट माय फोकस, क्यों मैं अपना फोकस लॉस कर रहा हूँ. दिस इज द थिंग कि समहाउ हम क्या कर देते हैं, हम अपना ट्रैक खो देते हैं. जब हम अपना ट्रैक खो देते हैं तो वी कैन लॉस अवर फोकस. वही वाली बात है कि अगर आई एम टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइजमेंट, हाउ आई कैन ऐड अ सेल्स इन. सेल्स अलग है, एडवर्टाइजमेंट अलग है, प्रमोशन अलग है. हाउ कैन आई मिक्स देम, राइट, मिक्स अप, हाउ कैन आई मिक्स अप इट. So it is very important to focus your point. एक दफा पता चल गया कि फोकस क्या है तो फिर गलती के चांसेस कम होते. गलती करनी चाहिए क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है. Things to remember in this whole scenario, आपने जो चीजें याद रखनी है, that is very important. Okay, this is very going to interactive session. आपने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना है, ठीक है. Read your comments before posting it. The most important thing, आपने अपनी रीड करना है कमेंट को जो भी आप पोस्ट करने जा रहे हो, कि इट इज एथिकल, नॉन एथिकल, मेरी थिंकिंग को सही तरह बता रहा है या नहीं बता रहा है, या फिर मैं ऐसे ही कोई पॉइंट तो नहीं जनरेट कर रहा जो लॉजिक नहीं. बी पोलाइट, क्रिटिसाइज द आइडिया, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट द पर्सन. समहाउ हम लिख रहे होते हैं तो हम क्या करने शुरू हो जाते हैं, हम क्रिटिसाइज द पर्सन, क्या आपकी तो थिंकिंग ही ऐसी है, ऐसे नहीं करना. आपने उनके आइडिया को क्रिटिसाइज करने के, आई हैव दैट काइंड ऑफ आइडिया, यू हैव दैट थिंग, सो इट इज समहाउ दैट कनेक्ट. मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता बट ये करती तो आइडिया मेरा ये है. ओके, डोंट रिप्लाई दैट यू डोंट से फेस टू फेस, सेम थिंग. ऐसी चीजें कोई बुरी चीज ना कहें. इंग्लिश इज नॉट प्राइमरी लैंग्वेज, तो आपने यूज अ सिंपल लैंग्वेज इन योर व्हाइल यू आर कमेंटिंग और एनीथिंग. वेस्ट नहीं करना अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है. Now, share your view and lecture. Okay, now, अब ये है कि आपने इस प्रोजेक्ट से, इस सारे जो लेक्चर है इससे क्या गेन किया, राइट? और आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है. If you need anything, you have to share a question with me, right? Thank you so much. Or I hope we will meet in the next section. Thank you for your time and investment.